This is the center of the circle. Okay. And let's suppose a particle is at this point, particular point. Okay. Particle is at this particular point. Let's say Q. And the question says, this is the direction of acceleration of the particle. This is the acceleration of the particle. And it makes an angle of 30 degrees with the radius of the circle. This is the radius of the circle. And the particle is rotating clockwise. Okay. This particle, if it is at this Q point, it is rotating like this, clockwise. This is the actual acceleration. Now what you have to find out, I'll write the question in the figure. It's a good question by the way, Malini, because आज आपने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया तो मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया है. Let's see if you guys are able to solve. मैं इसको समझा अच्छे से दूंगा. ठीक है, इसको अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है. In the figure, the total acceleration of the particle is 15 meter per second square. This is the total acceleration. Represents the total acceleration of the particle. Okay. So a particle is moving in clockwise direction in a circle with total acceleration of 15 meter per second square. Okay. Now what you have to calculate, you have to calculate, and also the radius is given. The radius of the circle, of course, the radius of the circle is 2.5 meters. So the circle is equals to 2.5 meters. Okay. Now what you have to do is you have to find the speed of the particle. Calculate speed of the particle in this circular motion. Did you understand the question? In the question, a particle is rotating in a circular path in clockwise direction. Clockwise direction में आपको सबको पता है ना, कैसे घड़ी की घूमने की दिशा में. ठीक है, मैंने ऊपर एरो भी बना दिया, देखो इस तरह से. This is clockwise. इस तरह से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे. This is clockwise direction. So a particle is at Q, point Q. It is rotating in clockwise direction, and the total acceleration makes an angle of 30 degree with the radius of the circle. तो थोड़ा बेटर करूं तो मैं कुछ इस तरह से फिगर बनेगी. यहाँ पर पार्टिकल है, ये सेंटर है सर्कल का. ठीक है, और जो पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन ए है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर से. टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल, and the particle is rotating clockwise. The radius of the circle is 2.5 meters. You have to calculate simply the speed of the particle. Now I'll give you 5 minutes to solve this question because it is a good question. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? Malini and Sapna, is the question clear? I hope it's clear. Okay, good. Try to solve it.
लेट्स सी क्या पोजीशन है, कैलकुलेट करके बैठे हैं, बताना भी तो होता है। अच्छा अभी अभी कराया 540 बन गई। ओके 5√2 5√2 5.7। ओके आंसर सीम्स करेक्ट टू मी। सॉल्यूशन देखना है इसका, ये कर लिया है आपने तो एक बार मैं कैलकुलेट करके चेक कर लूं। दी आंसर तो सही लग रहा है मेरे को। 2 4 3√3 फिर आपने रूट ले लिया होगा, तो क्वेश्चन द आंसर इज करेक्ट। यस 5.75 इज करेक्ट। किसका आंसर 5.75 आया था? सपना। ओके सपना आपका आंसर एकदम सही है 5.7। सो लेट मी एक्सप्लेन फॉर मलिनी। देखो मलिनी होता क्या है, क्या होता है सर, अब वही बता रहा हूँ क्या होता है। होता है कुछ इस तरह से, देखो आपको ना मैं वर्बली थोड़ा बताता हूँ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन में ज्यादा लिखने के मूड में हूँ नहीं, आपको वर्बली बताता हूँ क्योंकि ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे पार्टिकल की स्पीड पूछी है इस क्वेश्चन में। क्या पूछा है आपसे? पार्टिकल की स्पीड, और आपको दिया क्या? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है, तो आपको सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। इतना तो क्लियर होगा कि हमको करना क्या है, हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है v²/r वाला, और उसमें हमको एक्सेलरेशन गिवन है, रेडियस गिवन है, सर्कुलर सर्कुलर पाथ गिवन है। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें v² कैलकुलेट करना है, हमको वेलोसिटी मिल जाएगी और वही हमसे पूछी भी है। तो आपने सोचा तो सही। अगर मैं बहुत मिनिमलाइज करके लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। v²/r इज इक्वल्स टू a cos 30। ठीक है, ये आपको करना था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको a cos 30 देना था बस ये आपको यही समझने वाला पॉइंट है, और कुछ इसमें समझने वाला पॉइंट है नहीं। मैंने यहाँ पे a सीना लिख करके a cos 30 ऐसे क्यों लिखा है? बिकॉज देखो बेटा, इरेजर कहाँ है? यही इरेजर तो यही है, इसमें ही होती है। थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ उसको, एनलार्ज व्यू पढ़ते हैं। ये रहा पार्टिकल Q। फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v²/r, है ना। बट यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस इज टोटल एक्सेलरेशन and this is radius r, and I've always told you कि centripetal acceleration is the acceleration which is aligned along the radius. So this component which is along the radius will be a centripetal acceleration. So what will be the component of acceleration along the radius? It will be a cos 30। बस इतना ही बात समझने वाली थी। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया है, टोटल एक्सेलरेशन दिया है। टोटल एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 30 डिग्री पे रेडियस से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल रेडियस ए का आप cos थीटा कंपोनेंट ले लो। थीटा कितना है आपका? 30। cos थीटा कंपोनेंट ले लो जो कि आपका रेडियस के अलोंग अलाइंड होगा, और जो रेडियस के अलोंग अलाइंड कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन, वही आपका क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो v²/r आपका a cos 30 ऐसे आ गया। इसके बाद कैलकुलेशन है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको v² निकालना है यहाँ से। आप क्या करें, ए की वैल्यू रखें 15, cos 30 की वैल्यू √3/2, और आर की वैल्यू कितनी है आपका? आर भी कितना दिया हुआ है? 2.5। 2.5। अब इस कैलकुलेशन में सिंपल सी बात है, तो अब एक्सप्लेन मैं करूंगा नहीं, बट अगर आप देखो मोटा मोटा आपको बताऊंगा, तो देखो इसको आप 10 लिख लो, ठीक है, इसको आप 2 लिख लो, इसको आप 3 लिख लो, और ये क्या होगा? इसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर ये हो गया 25 बाई कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 इंटू 3√3। 25/4 क्योंकि फर्दर सिंपलीफाई हो नहीं पाएगा, इंटू 3√3।
अब आप यहाँ पर वी स्क्वायर है, यहाँ से डायरेक्ट ही रूट ले लो। अब यहाँ से डायरेक्ट ही रूट ले लोगे पूरे का, तो मालिनी आपको एक चीज तो क्लियर दिख जाएगी, 5/2 बाहर आ जाएगा। 25/4 का रूट हमें आपको 25 का रूट पता है, 25 का रूट 5 हो गया, 4 का रूट आपको पता है 2, ठीक है, इनटू में √3√3, ठीक है। 3√3 में से भी यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, है ना। 3√3 में से भी 3 बाहर आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 3√3 को सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ आपको। 3 इंटू √3 की वैल्यू आपको पता होगा 1.73 होती है, इतना तो इतना याद होगा आपको, ठीक है। अब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन करके देखो, 1.73 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज ये अप्रोक्सीमेटली 2 के पास है, अप्रोक्सीमेटली 2 के पास है ये। तो 3 इंटू 2 6 होता है, बट 1.73 आपका समवेयर अराउंड 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 5.24 ऐसे समथिंग ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अभी अप्रोक्सीमेशन आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब इसका रूट लेना है आपको 5.24 का। अब आपको आपको एक बात पता है कि 4 का √4 का आंसर होता है 2, √4 का आंसर होता है 2, √5 पॉइंट समथिंग का आंसर 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 2.3 या 2.4 समवेयर लाइक दैट, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। तो आप इस तरह से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, 5/2 इंटू 2.4 आप चाहे ले लो, फिर आप इसको काट सकते हैं 1.2 एंड देन 5 इंटू 1.2 करके आप अपना आंसर निकालोगे, अप्रोक्सीमेटली 5.75 के पास ही आएगा। तो इसमें कैलकुलेशन बस थोड़ा सा फास्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन डिटेल्ड है, ठीक है। और यहीं पे कहीं पे आप आई गेस मार्क्स खा लोगे। बाकी आई होप आपने फॉर्मूला सही अप्लाई किया होगा। लेट्स हियर फ्रॉम, सपना का तो आंसर सही था, मलिनी हाँ क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। आज आप दोनों ही हो क्लास में, somebody else has joined, प्रतिभा has joined। प्रतिभा बेटा लेट मत आया करो। गुड इवनिंग। अच्छा आप पहले से थे, मैं आपको दिखा ही नहीं। ओके ओके, मैंने आपको देखा नहीं बेटा, सॉरी। आपका आंसर भी नहीं आया ना, लेकिन इसलिए भी तो नहीं देखा मैंने आपको। एक और क्वेश्चन करना है, कर लेते हैं। प्रतिभा को मैंने देखा नहीं इसीलिए ना। ओहो हो, टेलीग्राम में एक बार किसका, अच्छा तो प्रसन्ना का है। क्लास आ रही नहीं है, टेलीग्राम मैसेज बार बार, क्या देखते हैं बाद में प्रसन्ना क्या कह रही है। एक क्वेश्चन दे दूं, उसके बाद इसका मैसेज चेक करते हैं। मलिनी ने क्वेश्चन गलत किया था, तो मलिनी को सजा मिलेगी। सो मलिनी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मलिनी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। मलिनी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, कितना ले रेडियस, रेडियस भी एम में ले लेता, लेकिन अब ऑलरेडी एम से मलिनी हो गया है। सो इट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ, लेट्स से प्रतिभा है ना, तो प्रतिभा है तो p0 मीटर पर सेकेंड इन दी nth सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब जो जो गलत आंसर देगा उसका नाम ऐसे यूज करता जाऊंगा मैं क्वेश्चन में। तो मलिनी एंड प्रतिभा, आप दोनों ने आंसर नहीं किया था। So, okay, the question is clear. Malini starts moving from rest in a circular path of radius r. The radius of the circular path is r. So, Malini attains a velocity of p0 meters per second in the nth second. In the nth second, calculate the angular acceleration of Malini. Okay, calculate करना है आपको Malini का angular acceleration. I hope the question is clear. Question is clear. Okay. किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं क्लियर मान के चल रहा हूँ, है ना। ओके, try to solve this 2 minutes.
Anji, what is the condition? Nobody has solved it yet. Okay. 1 minute more. You can take 1 minute more. किसी का आंसर नहीं आ रहा? P naught upon NR rats per second square. Okay, one answer. Let's see. What are the other answers? It's a simple question. Okay. No more time for you. Acceleration will be बेटा आपने ये V नॉट वगैरह कहां से ला दिए? तो मैंने दिया ही नहीं है. V नॉट वगैरह का टर्म कहां से ला रहे हो? V नॉट वाला टर्म तो मैंने दिया ही नहीं है.
पूरे क्वेश्चन में कहाँ लिखा है मैंने वी नॉट? है सपना? देखो क्वेश्चन मैंने कहाँ पे वी नॉट तो कहीं लिखा ही नहीं, आपका आंसर वी नॉट की टर्म्स में कैसे आ गया? मैंने पी नॉट लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एन 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 लिखा हुआ है. हाउ डिड यू गेट योर आंसर इन दी टर्म्स ऑफ? सपना मेरी आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन तो करो बेटा जरा. सपना, आप पी नॉट आएगा वो तो मुझे पता है, आपका वी नॉट में कैसा है मैं ये पूछ रहा हूँ. पी और वी तो कीबोर्ड में भी इतना अलग अलग होता है. खैर आंसर आपका गलत है, आपने जहां से भी देखा है. आई एम श्योर आपने गूगल कर लिया है क्वेश्चन. मैं आपको बता दूं सपना कि नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैंने खाली वैल्यूज चेंज करा था. और क्योंकि आपने गूगल किया है तो आपको वो वाला वैल्यूज में आंसर मिला है जो है, लेकिन आपने फिर भी कॉपी भी ठीक से नहीं किया आगे बढ़ते हुए. इसलिए मैं कहता हूँ बेटा देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आया आपको उससे फर्क नहीं पड़ता ना, आपको तो ऑनेस्टली सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, मैं रोज रोज नया क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, मैं भी प्रीवियस ईयर से इधर उधर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा. बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपने गूगल करके आंसर निकाल लो और सॉल्व ना करो क्लास में. एनीवेज, मुझे क्या फर्क पड़ता है आप लोगों की लाइफ है, मैं तो एक बार समझा सकता हूँ. देखो, ओमेगा इनिशियल जीरो है, मलिनी एंड प्रतिभा ओमेगा इनिशियल जीरो है. ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, क्यों? क्योंकि रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है. आपको निकालना क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो आपको कैलकुलेट करना है. आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रही? फाइनल वेलोसिटी होती क्या बेटा? एक सेकंड, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है जरा. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. आपको कितनी दे रखी है मैंने? पी नॉट. ठीक है, तो ओमेगा फाइनल को मैं पी नॉट अपॉन आर लिख सकता हूँ इस वाले रिलेशन से, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले रिलेशन से. आप देखो ओमेगा को मैं वी अपॉन आर लिख सकता हूँ ना. मैंने आपको फाइनल वेलोसिटी दी कितनी हुई है? पी नॉट. ओके, तो मैं ओमेगा फाइनल कितनी लिख सकता हूँ? पी नॉट अपॉन आर. आई होप दिस इज क्लियर मालिनी एंड प्रतिभा. ओके, नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड थीटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड थीटा, एक चक्कर में इन वन सिंगल राउंड द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई in radian. This is total angular displacement in one complete round in a circular motion. ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में आप पूरा चक्कर घूमते हो तो 2 पाई रेडियन आप एंगल कवर करते हो. ठीक है, तो nth सेकंड में आपने वेलोसिटी अटेन करी. nth सेकंड में मतलब आपने कितने चक्कर लगा लिए? n चक्कर लगा लिए. तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो गई? 2n पाई. टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई आपकी? 2n पाई, है ना? I hope this is also clear. This part is also clear. By total, this is theta total. n सेकंड्स तक कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी? 2n पाई. अब आपको करना कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन लगानी है जो मैंने आपको सिखाई थी. ओमेगा फाइनल स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली. अब ओमेगा फाइनल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना? ओमेगा फाइनल क्या है? पी नॉट अपॉन आर, तो पी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2n पाई. यहां से आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करें? 2 इंटू 2n पाई 4n पाई हो जाएगा. तो आप 4n पाई को
लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें। लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो देखो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू p नॉट स्क्वायर अपॉन 4n पाई r स्क्वायर। ठीक है मालिनी, ठीक है प्रतिभा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। अल्फा इज इक्वल्स टू p नॉट स्क्वायर अपॉन 4n पाई r स्क्वायर। बहुत सिंपल था ये, जस्ट आपको इक्वेशन लगानी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन और फॉर एंगुलर वेरिएबल्स। तो एंगुलर वेरिएबल्स के भी इक्वेशन सेम होती है, जस्ट उसको अप्लाई करना था, नथिंग एल्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ let us study about centripetal force beta. What is centripetal force? Centripetal force ऐसी force होती है बेटा जो centripetal acceleration की वजह से arise हो. So the force which arises due to centripetal acceleration is known as centripetal force. It is denoted by Fc. Okay, the symbol Fc, centripetal force, Fc. इसका definition मैं आपके लिए लिख देता हूं. When a particle is moving in circular path then centripetal force is present due to centripetal acceleration. This centripetal acceleration, you all know, is directed along the radius and towards the center of the circle. So the centripetal force will also be directed where? The centripetal acceleration along the radius है और towards the circle है, तो centripetal force will also be in the same direction. So centripetal force is also directed along, ये L है, along the sorry, along the radius and towards the center of the circle. So I hope the main thing about the centripetal force is clear. मेन आइडिया आपको लग गया होगा। ये एक ऐसी फोर्स है जो किस वजह से पैदा हो रही है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। सर्कुलर पाथ में जब आप कोई पार्टिकल रोटेट करता है, व्हेन अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ, द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज बाउंड टू बी प्रेजेंट। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, एंड क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल फोर्स को जन्म देगा। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल गिव birth to centripetal force. And the direction of the centripetal force will be same as the direction of the centripetal acceleration, which is along the radius towards the center of the circle. So the formula for centripetal force Fc is simply, force is what? Mass into acceleration. So mass times centripetal acceleration, that will be mv square by r, or m omega square r, or mv omega. These three formulas we did for centripetal acceleration: v square by r, then omega square by r, and then v omega. ये सारे फॉर्मूले हमने करे थे, उनको बस मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। A 500 kg car
takes a round turn of radius 50 meters with a velocity of 36 km per hour. Calculate its centripetal force. Just try to solve this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, बस यूनिट देख लेना किलोमीटर पर आवर में, रेडियस आपको दिया हुआ है 50 मीटर का, और फोर्स पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट इन 1 minute. किसी का भी आंसर नहीं आया, वाई सो? 1000 न्यूटन, ओनली सपना. इतना टफ प्रतिभा और मलिनी, इतना टफ लग रहा है क्या आपको क्वेश्चन? एटलीस्ट गिव मी सम आंसर, बहुत टाइम हो गया अब तो.
सर कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। एनीवेज, velocity is given to you 36 kilometer per hour. Okay, but the radius is in meters. So do one thing, either you convert this meter into kilometer or you convert this kilometer per hour to meter per second. But generally the SI unit of velocity is meter per second, so you should convert the second one. ठीक है, आपको मैंने सिखा रखा है हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, 36 into 5/18 will be what? 10 meter per second. So velocity is 10 meter per second now. इतने मैसेज कौन कर रहा है टेलीग्राम पे? फटाफट एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दूं फिर देखते हैं। फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा 500। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? v स्क्वायर ना, इज व्हाट इज ac? v स्क्वायर बाय r। सो 100 अपॉन कितना? 50, तो 2, तो 1000। ऐसे करना था बस, सिंपल तो है। लेट मी जस्ट आपको एक और क्वेश्चन दे दूं तब तक, लेट मी जस्ट सी। आपको मैंने पढ़ा दिया ना सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, तो एक वाला क्वेश्चन भी मैं शायद मैं दे सकता हूँ। इसका डायग्राम बनाना बेटर रहेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंटर है बोथ द सेंटर का, बोथ द सर्कल्स हैव अ कॉमन सेंटर O. The radius of the first circle is r, the radius of the second circle is r/2. Okay, a particle of mass 2m is rotating in the lighter circle and a particle of mass m is rotating in the outer circle. ठीक है, अंदर वाले में 2m मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा है, and in the lighter in the bigger circle a particle of mass m is rotating. ठीक है, the velocity of the particle of 2m is v, okay, v velocity, and the velocity with which the particle m is rotating is n times of the velocity of 2m particle. तो 2m वाले की अगर velocity v है तो उसकी n times मतलब m वाले की velocity nv हो जाएगी, n times of the particle which is of the mass 2m. So you have to calculate the value of n if the centripetal forces of both the particles are same. Okay, if centripetal force, क्वेश्चन क्लियर है ना? दो सर्कल्स हैं कॉमन सेंटर के साथ, द बिगर सर्कल इज ऑफ रेडियस r, द स्मॉलर सर्कल इज ऑफ रेडियस r/2. अ पार्टिकल ऑफ मास 2m इज रोटेटिंग इन द स्मॉलर सर्कल विद वेलोसिटी v. अ पार्टिकल ऑफ मास m is rotating in the bigger circle of radius r with the velocity n times of v. And if the centripetal forces of both the particle are equal, if the centripetal forces of both particle are equal, calculate the value of n. Okay, just try to calculate this.
Okay, let me see how many of. Okay, nobody has solved it till yet. Okay, जल्दी, अभी कितना टाइम चाहिए? Guys, why are you taking this much time? It's very easy question. इतना टाइम क्यों ले लेते हैं आप लोग? क्योंकि मैं देता हूँ सर, सिंपल है सर, आप देते हो, हम अपना टाइम ले लेते हैं। हमें तो पूरा आदत हो गई है सर अब ना, आराम तलबी से क्वेश्चन करने का। ऐसा तुमको पता है ना कि जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतना टाइम एग्जाम में तुम्हें नहीं मिलेगा, एक्चुअल एग्जाम में। हाँ, कभी तुम्हें पता ना हो, वहां जाके शॉक हो जाओ, अरे क्लास में इतना टाइम मिलता था, यहाँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो शॉक लग जाए। Okay, the question is saying that the centripetal forces are equal. So forces, centripetal force at mass m is equal to the centripetal force at mass 2m. Okay, what are centripetal forces? Mass into acceleration. And what is acceleration? Square of the velocity. So the particle with velocity with mass m is having a velocity nv and the radius is r. So the square. अच्छा, अरे रेडियस का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एम वी स्क्वायर बाई आर होती है ना, m into nv square upon r. Similarly, 2m mass, velocity is v square upon r by 2. Now just this m and this m will get cancelled, this r and this r will get cancelled, v square and v square will get cancelled. What will be the final answer? Here n square is left, so n square is equals to 4. So the value of n is 2. इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम ले रहे हो। Anyways, more or less this chapter is over now. No, this chapter, this particular topic, circular motion. Just two things more. Let me tell you. Just remember, एक बात याद रखना, हमेशा work done जो होता है ना बेटा, work done by centripetal force, work done by centripetal force is 0. ठीक है, work done by centripetal force is 0 because centripetal force is acting inside the circle and the direction is along the center and the particle is getting displaced along the tangent. Okay, so the direction of force is perpendicular to the डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो रहा है, उसके 90 डिग्रीज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग टेंजेंशियल एंड द फोर्स इज रेडियल. सो बोथ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द वर्क डन इज इक्वल्स टू बेटा एफ डॉट एस. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तब आपको वर्क डन मिलता है. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है सिंस, तो एफ डॉट एस क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा and cos 90 is 0. That is why the work done by centripetal force is 0 in a circular motion. Well, centripetal force लगेगा भी circular motion में, तो कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, and
या दिस वाज इट. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आप एक और पॉइंट लिखना चाहें, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम. व्हाट इज यूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. In uniform circular motion, change in kinetic energy K dot E is zero. Why change in kinetic energy is zero? Because kinetic energy is due to change in speed. ठीक है, kinetic energy कब पैदा होती है बेटा? जब आपकी स्पीड में कोई चेंज आ रहा हो. And since in uniform circular motion your speed is constant, so your change in kinetic energy will also be zero, because आपकी स्पीड में कोई चेंज आया नहीं. और kinetic energy में चेंज कब आता है? जब स्पीड में चेंज आए, तो इसलिए आपका चेंज इन kinetic energy जीरो आता है. ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एंड सर्कुलर मोशन के बारे में. एंड विद दिस द सर्कुलर मोशन टॉपिक इज ऑलमोस्ट, इज नॉट ऑलमोस्ट, इट्स ओवर. जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो या तो डाउट में पूछ लेना, या फिर जैसे मेरे को कुछ और चैप्टर के आते टाइम याद आएगा तो मैं लिंक करके पढ़ा दूंगा आपको कि ये चीज भी सेंट्रीपिटल फोर्स में होती है. ठीक है, बट एक बात याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. इट इज फोर्स व्हिच हैज बीन एग्जिस्टिंग इन सम अदर फॉर्म. ठीक है, हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया ऑब्जर्व करके निकाला. ठीक है, जैसे कि दो प्लैनेट्स मूव करते हैं तो आपको पता है कि वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल पुल से खींचते हैं. ठीक है, जब हम अर्थ लगाती है, सन के अराउंड रोटेशन करती है, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना बेटा अलोंग द वो होता है ज्वाइनिंग दी सेंटर पॉइंट्स ऑफ बोथ द प्लैनेट्स. तो दोनों प्लैनेट्स के जो सेंटर पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो भी एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, क्योंकि अर्थ क्या है, सर्कल में रोटेट कर रही है अराउंड द सन. अर्थ इज रोटेटिंग इन सर्कल and the force between the sun and the earth is along the radius of that circular path, so that is also a type of centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कोई नई चीज नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा तो एक नई फोर्स डेवलप हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस होती हैं सर्कुलर मोशन में, उन्हीं में से जो फोर्सेस अलोंग द रेडियस इंक्लाइंड होती हैं, अलोंग द रेडियस आपकी लाइन अलाइंड होती हैं, उन्हीं को आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो. और सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज आपको बता दिए. एक आध क्वेश्चन हमने फॉर एग्जांपल कर लिया. So that was it. We can start the Newton's laws of motion. I will give you a brief introduction. सर आप बता दो, नहीं समझा. बता दिया ना, तो समझ गया हो. जस्ट कंफर्म कर दो मेरे को एक बार समझ गया हो तो. सर समझ के भी नहीं समझे हम तो. ओके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करने के बाद मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ. हुआ क्या था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन आखिर आए कैसे? यू ऑल हैव स्टडीड लॉज ऑफ मोशन इन 9th क्लास का चैप्टर. ठीक है, आपने पढ़ा है. कोई ऐसी नई चीज तो ऐसी है नहीं जो न्यूटन ने 11th क्लास में नहीं कुछ दे दिया हो. लॉज ऑफ मोशन सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ. हुआ क्या था, सबसे पहले एरिस्टोटल नाम का एक पर्सन था. एरिस्टोटल आपकी बायोलॉजी में भी होगा. उसने हर चीज में बोला, एक फिलोसफर था एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर था. तो फिलोसफर्स क्या करते हैं, कुछ भी चीज ऑब्जर्व करते हैं तो अपनी एक फिलोसफी दे देते हैं. जैसे आपने ऑब्जर्व किया मलिनी की प्रतिभा की और सपना की लड़ाई हो रही है, तो मलिनी ने एक थ्योरी दे दी कि हो सकता है सपना ने इसको चोर बोल दिया हो, इसलिए प्रतिभा और इसकी लड़ाई हो रही है. पता उन्हें कुछ नहीं होता, बट एक फिलोसफी वो दे देते हैं. वो फिलोसफर्स होते हैं. ठीक है, बिना कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे एक थ्योरी दे देना कि इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, वो फिलोसफर्स करते हैं. तो एरिस्टोटल एक ऐसी फिलोसफर था. वो साइंस, फिजिक्स की भी है ना, बायो की भी, हर एक फिनोमेना की, मतलब जो भी फिनोमेना हो रहे थे तो उसके सराउंडिंग में उसको ऑब्जर्व करके एक थ्योरी देता था. स्टार्टिंग ऐसे हुई लॉज ऑफ मोशन की, मतलब कि उसने, एरिस्टोटल ने ना क्या किया, ये देखा कि फिशिंग करते थे पुराने जमाने में लोग, फिशिंग करते थे ना. फिशिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, जो फिशिंग की नेट होती है, द फिशिंग नेट, व्हाट दे डू इज दे टाई द नेट विद अ लॉन्ग रोप, है ना, अ लॉन्ग थ्रेड, एंड देन दे rotate that thread in the air so that it gains some momentum, and then they throw it so that it reaches far more deep inside the ocean or the lake जहां पे वो कर रहे होते हैं फिशिंग. ठीक है, घुमा करके फेंकते हैं उसको, एक लॉन्ग रोप से टाई करते हैं नेट को और फिर दूर फेंकते हैं, है ना. दूर इसलिए कि पानी में किनारे के पास इतनी मछलियां नहीं होती जितनी सेंटर में होती हैं. बड़ी मछलियां जितनी ज्यादातर होती हैं सेंटर में उधर होती हैं, तो ज्यादा मछलियां फंसे, आसानी से फंसे, जल्दी फंसे, इसलिए दूर फेंकते हैं. तो इसी को ऑब्जर्व करके एरिस्टोटल जा रहा होगा, कोई फिशिंग कर रहा होगा, उसने ऑब्जर्व किया, उसने एक थ्योरी दे दी कि देखो ऐसा होता है. तो उसने थ्योरी ये दी कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन. ऐसे बोल के चला गया. जो फिशिंग करा था उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोल गया एरिस्टोटल, बट उसने ऐसे कुछ बोल दिया.
उस अब आप लोग समझ सकते हो व्हाट एरिस्टोटल सेड दैट an external force is required to keep a body in motion, कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, सपोज अ कार इज मूविंग, ठीक है, और वो कार चल रही है, तो उसको लगातार चलाते रहने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट एरिस्टोटल सेड, ठीक है, बट दिस प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है, लेटर गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि एरिस्टोटल जो बोल रहा था गलत था। वो एक्सपेरिमेंट्स को भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देता हूँ। गैलीलियो ने क्या किया, व्हाट डिड गैलीलियो डू, गैलीलियो ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व वाज दैट व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन समझते हो आप, इंक्लाइंड प्लेन बेटा इस तरह का होता है, ठीक है, दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन, सो इफ अ बॉल वाज dropped from the top of the inclined plane, what Galileo observed that while reaching the bottom, the speed of the ball was increasing. So let's say the speed of the ball was u here, so it kept on increasing and finally became v. Okay, so v is greater than u. ये Galileo ने observe किया. Then again he repeated the phenomena, but this time he observed the motion from downside of the incline towards the top of the incline. ठीक है, उसने u वेलोसिटी से he throwed the ball with velocity u, and what he observed that now the speed of the ball is continuously decreasing when the ball is reaching the top, और टॉप पे पहुंच करके बॉल की जो स्पीड है काफी कम हो गई. So you observe that in the downward motion the speed is increasing, and in the upward motion the speed is decreasing. That is what he observed. So he concluded कि देखो अगर बॉल इंक्लाइन से नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, और अगर बॉल इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रही है तो स्पीड घट रही है. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉल को रोल कर रहा हूं, इफ आई सिंपली रोल द बॉल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इट्स स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट, है ना, उसकी स्पीड को ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, शुड रिमेन कांस्टेंट. जिसमें से अगर मैंने यू से थ्रो करी है, इफ आई rolled the ball with u, so the final velocity of the ball should also be u, there should be no change on horizontal plane. ये उसने ऑब्जर्व किया, बट ऐसा हुआ नहीं, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रिक्शन, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन दिस डोंट हैव, एंड द बॉल स्टॉप्ड रोलिंग. सो हाँ, ये एरिस्टोटल की बात जो है इस एक्सपेरिमेंट से, छोटे से एक्सपेरिमेंट से गलत प्रूव हो गई थी, ठीक है. और इसके अलावा भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, स्प्रिंग पेंडुलम वाले, और मतलब मेजरली तो यही हुए थे. तो ये सब करके उन्होंने एरिस्टोटल ने जो मेन स्टेटमेंट दी थी ना, एरिस्टोटल ने जो मेन बड़ी सी स्टेटमेंट दी थी कि हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होती है ना, टू कीप अ बॉडी मूविंग, टू कीप द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत प्रूव हो गई, बिकॉज यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स आपका जो है मोशन को स्टॉप कर रही है, ना कि मोशन को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है. तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट से ये डिस्प्रूव हो गया. इसके बाद जो हुआ वो कुछ इस प्रकार था. लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, उसके बाद गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद गैलीलियो हैज फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ इनर्शिया. ये सब आएगा नहीं बिल्कुल भी आपका, ठीक है, ना तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू शुड नो द बेसिक, है ना, एक आइडिया होना चाहिए आपको कि हाउ डिड दीस एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूडेड टू व्हाट वी स्टडी in today's time, how what were the series of experiments, you should be aware of that. So yeah, so Galileo formulated a new law based on his observations. Galileo पता है ना कौन है वो, आपने पढ़ा होगा गैलीलियो को, ग्रेविटेशन अगर आपका हो गया है तो आपने गैलीलियो पढ़ लिया होगा, गैलीलियो गैलीली. चलिए ध्यान से सुनना, what is the law of inertia which he gave. The law of inertia states that if the external force is zero, then a body at rest continues to remain at rest and a body in motion continues to move with uniform velocity. ठीक है, this is the law of inertia. अभी inertia क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, we will discuss this, but this was the first law which was formulated by Galileo. The law stated, which is written here also, इस चीज को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बना लिया. न्यूटन
as it is copy pasted the Galileo's observation and he gave his first law. Later न्यूटन ने रिसर्च करा अपने पहले लॉ पर, उसने फिर सेकंड लॉ दिया, थर्ड लॉ दिया, उसमें उसने मेहनत करा. फर्स्ट लॉ is the analysis of the Galileo's law of inertia. Newton's first law of motion is the analysis of Galileo's Galileo's law of inertia. So what was the law of inertia? Law of inertia was that the net force, if the net force is zero, then a body at rest continues to remain at rest. अगर net force नहीं लग रहा है किसी बॉडी किसी भी तरह का, तो net force जो होगा उस पे, तो सॉरी, अगर तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी. अगर कोई नेट फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा. नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स कौन से होते हैं? जो बाहर से लगा, जो सिस्टम के अंदर ना हो. ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट पंप करता है, ठीक है, आपका हार्ट ब्लड पंप करता है, तो पंपिंग के लिए जो वो प्रेशर, जो फ्लो, वो जो फोर्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इंटरनल फोर्स. ठीक है, बट आपको कोई बाहर से आके धक्का दे दे, उस वजह से आपका, जैसे आपने वो करा होगा, अपने बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों का पैर सो जाता होगा, है ना, उसको हमारे हिंदी में पैर सोना बोलते हैं. उसको बेसिकली बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है आपकी किसी भी ऑर्गन में, तो यू लूज द सेंसेशन ऑफ दैट ऑर्गन, है ना. आपने ऑब्जर्व किया ना, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है. अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी गलत पोजीशन में बैठ जाओ या वो हो जाओ, तो आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है, और जिस ऑर्गन में अफेक्ट आता है, जिसमें ब्लड नहीं जाता है, वहां पर आपको सेंसेशंस होना बंद हो जाती है. यू वुड नॉट फील द पेन, द पिंच, द पंच, किसी भी तरह का सेंसेशन आपको नहीं होगा उन ऑर्गन्स में. दैट इज बिकॉज द ब्लड फ्लो इज स्टॉप्ड. उसको हिंदी में हम पैर सोना बोलते हैं. सो व्हाट यू डू इन दैट केस, यू मूव योर बॉडी, जर्क देते हो आप बहुत ज्यादा. ठीक है, यू मूव द बॉडी विद कंटिन्यूअस up and down motions and whatnot. Okay, in that case you are providing what? You're providing some external force to your body to resume the blood flow. अब blood flow को resume करने के लिए external force दे रहे हो, ठीक है ना. So वो external force में define करने के लिए example use किया. तो अगर किसी body पे net external force zero है, then the body at rest will continue at rest. ठीक है, अगर मैंने बॉल को रख के छोड़ दिया ग्राउंड पे और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे बॉल पे काम नहीं कर रहा है, तो ग्राउंड पे रखी हुई वो बॉल जो रेस्ट में है वो रेस्ट पे ही रहेगी, चाहे उसे एक दिन बाद आके देखो, 2 दिन बाद आके देखो, 3 दिन बाद आके देखो. ओके, सो दैट बॉल ऑन द ग्राउंड विल रिमेन एट रेस्ट even after you come after 100 days. If there is no external force on the ball will remain at rest and at the same point where you have kept the ball on the first day. After 100 days you will find the ball at the exact same point. Acha. Now, what is the second case of this law of inertia? Suppose the body was not at rest, the body was moving with some constant velocity, okay, with some uniform velocity, and now also there is no external force. Suppose we have rolled the ball on the ground and there is no friction to stop the ball, then the body will keep on rolling the ground, keep on. There's nothing, no force is there to stop the ball, so the body will keep on rolling. So if the net external force is zero, a body which is in the motion will continue to be in the state of motion. It will not come to state of rest. ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो बॉडी चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं, स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आएगी. रेस्ट मतलब रुका हुआ होना. ठीक है, इतनी बातें क्लियर है. Now, Newton's first law was based exactly on that. What is the Newton's first law? Newton's first law states that a body continues to be in its state of rest or uniform motion. पढ़ो साथ में. A body continues to be in its state of rest or uniform motion until and unless it is acted upon by some external force. अगर आप external force नहीं लगाओगे किसी बॉडी पे, तो जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. And if you apply some external force, then only you will be able to change the state of motion. ठीक है, बॉडी का प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन जो भी होगा उसको आप तभी चेंज कर सकते हो जब आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. So only if you apply some external force on a body, then only you will be able to change its state of motion. That is, if it is at rest and you apply the force, then you will be able to bring the body in the motion. And if it is the body is already in the motion and you apply some external force, then you will be able to stop the body. That is the meaning of the Newton's first law. Okay, बात वही है, सेम बात है. If the net external force is zero, the net external force in this case is zero. If the net external force is zero, the velocity of the body which is in motion will remain constant because there is no acceleration. Acceleration is zero. Why acceleration is zero? Because the force is zero. Acceleration is due to some force. Acceleration कब आता है? जब कोई force हो. और मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ में बोला ये है कि कोई फोर्स ही नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, तो जो बॉडी मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी,
क्यों चलेगी? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है. So this law defines what is a force. The body opposes any external change in its state or rest of or uniform motion. अब आप देखो ये लास्ट वाला जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, वो कितना इंटरेस्टिंग है. वो आपको लॉ ऑफ इनर्शिया भी समझा रहा है. लॉ ऑफ इनर्शिया बेटा यही होता है, अगर आप रेस्ट में हैं, अगर आप जैसे एक सोफे पे बैठे हुए हैं, जैसे आप सोफे पे बैठे हुए हैं, तो जो आपका इनर्शिया क्या कहलाएगा? अगर कोई आपको हाथ से पकड़ के खींचने लगे, ठीक है, आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाने लगे, खींचने लगे, तो आप जो फोर्स लाएंगे ना नीचे बैठे रहने के लिए, सोफे पे बैठे रहने के लिए, वो आपका होगा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है दोबारा समझना. इनर्शिया का मतलब होता है चेंज को अपोज करना. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनर्शिया इज टू अपोज द चेंज. ओके, इनर्शिया भी हम डिटेल में करेंगे, जिसमें आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं. इनर्शिया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनर्शिया इज टू अपोज द चेंज. जस्ट वेट अ मिनट. ओहो, आपका बायोलॉजी क्लास. मैम का मैसेज आ रहा है कि बायोलॉजी क्लास का टाइम है. ओके, जस्ट टू समराइज, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स, if the net external force on a body is 0, then the body which is at rest will continue to be at rest, and the body which is in motion will continue to be in the state of motion. ठीक है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है, यही लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, बस डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करी हुई. लॉ ऑफ इनर्शिया को कल डिटेल में समझेंगे, बट आपको आज एक टेक होम क्या चीज है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इफ ऑन अ बॉडी इज 0, then you will not be able to change the state of motion of that body. ठीक है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे 0 कर दोगे, तो अगर वो रेस्ट पे है तो उसे आप हिला नहीं पाओगे, और अगर वो मोशन में है तो उसे आप रोक नहीं पाओगे. मतलब समझ में आ गया ना आपको? चेंज ऑफ स्टेट नहीं कर पाओगे. और इसी को इनर्शिया भी बोलते हैं. इनर्शिया का बेसिक मीनिंग क्या है? टू अपोज द चेंज इन योर प्रेजेंट स्टेट. अगर आप बैठे हुए हो तो आप चलने ना लगो, अगर आप चल रहे हो तो आप रुको ना. ठीक है, फोर्स का काम क्या है? एक्सटर्नल फोर्स आपको क्या करेगी? आपकी मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगी. अगर आप चल रहे हो तो आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इनर्शिया क्या करेगा? आपको रुकने नहीं देगा. तो इनर्शिया का काम बेसिकली होता है, इनर्शियाज बेसिक जॉब इज टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है? एक्सटर्नल फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज योर स्टेट ऑफ मोशन, बट योर इनर्शिया इज stopping for that change to happen. Okay, so that is your take home message about the inertia and the law of motion. So detail में करेंगे कल, but for today we'll do this much only. I hope all of you are clear, and you got yes, you're clear. Okay. Goodbye everyone. We'll continue in the next class from here only.